ملک کے خزانے میں 60 اور سندھ کے خزانے میں 95% حصہ ڈالنے والا کراچی پچھلی حکومتوں کی طرح سے آج بھی حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے 12 سالہ دور حکومت نے کراچی والوں کو صرف وعدے اور دلاسے دیے اور اب وہ وعدے اور دلاسے بھی ختم ہو گئے۔ آج بھی شہر کے تمام علاقوں میں پینے کا پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہے، سفر کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور ٹرانسپورٹ کے لیے سڑکیں موجود نہیں ہے، نہ ہی سیکیورٹی کے لیے سرویلنس کیمراز ہیں اور شہر میں سیف سٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پورا شہر ایک عام گریہ وزاری کی تصویر بنا رہتا ہے۔ دوسری جانب سیاسی جماعتوں کے جلسے پہ جلسے ہوتے ہیں، کراچی والوں کا ووٹ سمیٹنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ان جلسوں سے کراچی کے زخم بھر جائے تو کیا بات ہے۔ پہلے ایم کیو ایم پاکستان نے جلسہ کیا، تقریریں کی، پھر جماعت اسلامی نے اپنے جلسے میں کراچی کی آواز بننے کا دعویٰ کیا اور اب ایک بار پھر پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے ایک اور بڑا جلسہ کیا گیا ہے مزار قائد پر، جہاں پر پھر کراچی کے حالات بدلنے کے وعدے ہوئے ہیں، عزم کا اظہار ہوا ہے اور اس پارٹی کی ایک اور بڑی گیدرنگ ہے جو کہ دیکھنے میں آئی ہے۔ لیکن اگر ان تمام اسی قسم کی گیدرنگ سے مسئلے حل ہو جاتے، ان جلسوں سے مسئلہ حل ہو جاتا تو کیا بات تھا۔ بہرحال ایک مؤثر شو تھا۔ کراچی جو کہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے، اس 10 سالہ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 8,342 ارب روپے تمہارے نام پر اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو ملے۔ تم نے بجلی چھین لی، تم پانی نہیں دیتے، تم گیس نہیں دیتے، تم روڈ نہیں دیتے، سب بزنسز یہاں سے بند کر کے جا رہے ہیں۔ ایک قطرہ پانی شہر کو نہیں دیا، تم نے ایک بس نہیں دی۔ کراچی دنیا کا بدترین شہر ہے، نمبر 1، جس کا سیوریج کا نظام سب سے خراب ہے۔ ایک نیا اسپتال نہیں ہے، ایک نیا اسکول نہیں ہے شہر میں۔ تم ہمیں صحیح گنتے ہوئے بھی ڈرتے ہو، تم میری گنتی صحیح نہیں کر سکتے، اب تمہیں ہمارا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یقیناً لوگ جس انداز میں اس جلسے میں بھی شریک ہوئے، کورونا کے ماحول کے باوجود یقیناً کراچی والے اس قسم کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، اس قسم کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، مگر بہرحال ان جلسوں سے اور اس گفتگو سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس سے قبل جماعت اسلامی نے بھی سپٹمبر میں اپنے جلسے میں کراچی کے حقوق کے لیے ملک گیر تحریک کا اعلان کیا تھا، کوٹا سسٹم پر مسلسل توسیع پر تنقید کی تھی اور درست مردم شماری کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد اکتوبر میں کراچی کے مسائل سے متعلق ایک ریفرینڈم کا بھی انعقاد کیا۔ جماعت اسلامی کے اس جلسے سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان بھی شہر میں اپنا ایک شو کر چکی ہے۔ کہو وفاق سے اختیارات صوبوں کو ملیں تو مل جائیں، صوبے اتنے ہی اختیارات عوام کو با اختیار کرنے والی جمہوریت کو دو۔ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ میرے 3 کروڑ لوگوں کو آپ نے 1.5 کروڑ گنا، ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے اتنے کا پیکیج، خیرات ہے کوئی اتنے کا پیکیج؟ یہ وہ شہر ہے کہ جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے۔ تم سب نے مل کر اس شہر کو برباد کیا ہے، اسے پانی سے محروم کیا ہے، اسے بجلی سے محروم کیا ہے، اسے گیس سے محروم کیا ہے۔ کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتوں میں حصہ کیوں نہیں ملتا؟ تمہاری مردم شماری جعلی مردم شماری ہے، نہیں مانتے جعلی مردم شماری کو۔ نہیں مانتے، نہ مانا کرے، کسی کو کیا فکر ہے، اور یہ تمام مطالبات اور یہ ساری گفتگو یہ بار بار ہو رہی ہے، مگر کسی کو کیا فکر ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مصطفیٰ کمال، چیئرمین پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی، جلسے تو بے تحاشا ہو رہے ہیں، بڑی مؤثر آپ کا جلسہ ہوا ہے یہ باغ جناح پر قائد اعظم کے مزار پہ، لیکن ان جلسوں سے مسئلہ حل ہوتا تو کیا بات تھی، کیا کہیں گے آپ؟ کامران بھائی، ہم یہ جلسہ نہیں کرتے، شکریہ آپ کا ایک تو کامران بھائی سب سے پہلے موقع دینے کا۔ ہم یہ جلسہ نہیں کرتے۔ آج سے 2 مہینے پہلے کراچی کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ نالوں کا پانی گھروں میں گھسایا، ہزاروں گھر متاثر ہو گئے، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا اور ہفتوں پانی کھڑا رہا۔ ایسی تباہی بربادی آئی کہ وزیر اعظم کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کو کراچی بھیجنا پڑا۔ اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان آ کر عدالت لگا کے بیٹھے یہاں پر، اور وزیر اعلیٰ اور میئر کو بلا کر جو ہے اس کی سرزنش کی۔ اس کے بعد 2 راتوں تک آرمی چیف کو آ کر بیٹھنا پڑا۔ وہ کوئی
जंगी हिकमत अमली बनाने यहां पर नहीं आए थे। सबको पता है, सारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो कराची के नालों के मसाइल, कचरे के मसाइल और फरसुदा जो कराची हो गया है, इसके ऊपर कंसर्न होकर आर्मी चीफ आकर 2 रातों तक बैठे, 2 दिनों तक बैठे और बेतहाशा मीटिंगें की। फिर उसके फॉलोअप में इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने गवर्नर हाउस का दौरा किया और गवर्नर हाउस में 7 घंटे का दौरा करके उन्होंने एक पर्चा पढ़ के सुनाया कराची वालों को कि उनको 1100 अरब रुपए का एक पैकेज दिया जा रहा है। आज से 2 महीने पहले यह खबर थी। आज कैमरे हटे, उसके बाद तबाही बर्बादी दिखाना उन्होंने बंद कर दिया। वही हालात हैं, वही नाले हैं, वही कचरा है, वही तबाही बर्बादी है और कोई पुरसान है। उसके सोने पे सुहागा पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टीज यहां पर अवाम के नाम पर जमा हो रही हैं 18 अक्टूबर को और उसकी मेजबानी कर रही है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कौन सी पार्टी है? जो कि ऑपोजिशन पार्टीज का जो इल्हाक हुआ है उसमें एक नुमाइंदा जमात है। नाम है कि ऑपोजिशन की कंबाइंड जमात। लेकिन मजे की बात है 12 साल में जैसे हुक्मरानी में यहां पर वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी पार्टी के चेयरमैन, इस ग्रास बागे जिना से खड़े होकर वो हुकूमत को गिराने की बात कर रहे हैं, वो गरीबों की बात कर रहे हैं, वो इनकलाब की बातें कर रहे हैं। मुस्तफा भाई, आप बड़ा मुनासिब बात कर रहे हैं, मगर ये फरमाइए कि बिल्कुल ये पीडीएम का जलसा हुआ, ये तमाम कौमी जमातें यहाँ आ गई, यहाँ पीपल्स पार्टी ने मेज़बानी की, ना बिलावल भुट्टो ने, ना किसी मरियम नवाज ने, ना किसी ने कराची के मसले की कोई बात नहीं की, कराची के किसी दुख की बात नहीं की, कराची में जलसा किया, कराची की ये बात नहीं की कि इस शहर में एक भी बस नहीं चलती, इसमें किसी को पानी नहीं मिलता, यहाँ पे सेवरेज नहीं है, यहाँ पे कूड़ों के ढेर हैं। ना बिलावल भुट्टो ने की, ना किसी ने की। कराची ने उनका क्या बिगाड़ लिया? कामरान भाई, बिगाड़ेगा कराची, मैं आपको बता रहा हूं। ये इस खामोशी को लोग टेकन फॉर अगर ग्रांटेड ले रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये मुल्क में हम नहीं चाहते और कराची वाले ये नहीं चाहते, लेकिन मैं समझता हूं कि एक वक्त आएगा कि लोग अब खामोशी से अपने बच्चों को दफन करना बंद करेंगे, जहर मिला पानी, गटर मिला पानी पिलाना बंद करेंगे और फिर वो मारने मरने पर उतर आएगा एक आम आदमी और उसको किसी पार्टी वार्टी की जरूरत नहीं होगी। ये सब कुछ तबाह बर्बाद होगा। इसीलिए हमने कल वहां से आवाज लगाई है। एक तो कराची का कोई आदमी नहीं था उस जलसे में, पूरे पाकिस्तान से और सिंध भर से लोगों को लाकर वहां पर सरकारी खर्चे पर जमा किया गया। वो 11 पार्टीज थे। हमने अकेले कल आवाज लगाई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पूरे पाकिस्तान में मसला इमरान खान की साहब की वजह से हुआ होगा, यहां 12 सालों से मसला आपकी वजह से है। आप 12 सालों से हुक्मरान हैं। 8,342 अरब रुपए आपको एनएफसी अवार्ड और डायरेक्ट टैक्सेस में आपको मिले हैं। आपने कराची को कचरा कुंडी बना दिया, एक कतरा पानी नया नहीं दिया। जो पानी आता था उसे भी हम टैंकर में खरीद कर पीते हैं। आपने एक नई बस नहीं दी। कराची दुनिया का गंदा तरीन शहर है, दुनिया के बदतरीन रहने वाले लोगों में इसका शामिल है, शुमार है इसका। ये आपकी वजह से है। और मैंने तमाम जो बड़े, मैं इज्जत करता हूं सब सारे रहनुमाओं की, लीडरों की, लेकिन मरियम नवाज साहब को पलटकर उनसे पूछना चाहिए था जिस स्टेज से वो खिताब कर रही थी कि भाई ये जो बीआरटी का स्ट्रक्चर उनके वालिद साहब मोहतरम बनाकर ग्रीन लाइन गए हैं, उसके ऊपर बसें लाना पीपल्स पार्टी की हुकूमत का काम था। आज 12 सालों से वो स्ट्रक्चर तैयार पड़ा हुआ है कराची वालों के पैसे से। एक नई बस उन्होंने नहीं दी है। वो कैसे उनके साथ खड़े होकर स्टेज शेयर कर रही हैं? वो कैसे जो है वो हुकूमत गिराने की बात कर रही है? कामरान भाई, इस ऑपोजिशन की कंबाइंड एक बिल्कुल जितना बड़ा पीडीएम ने जलसा किया, इतना बड़ा पीएसपी ने जलसा कर दिया। इससे पहले जमात इस्लामी ने एक बड़ा मौसर जलसा कर दिया, फिर एमक्यूएम ने भी एक जलसा कर दिया। ये सब जलसे हो रहे हैं। आखिर कब तक ये जलसों से काम चलता रहेगा? ये कराची के आंसू पोंछने में अगर इन जलसों से काम होता, फिर मैं दोबारा कहूँगा इन जलसों से तो काम नहीं हुआ ना। दुनिया में जमहूरियतों में दबाव डालने के लिए सिर्फ जलसा ही तो एक तरीका कार नहीं है ना। लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज किया गया है। लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, पीटीआई उनकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी। पीटीआई वालों ने तो जलसा भी नहीं किया, आप लोगों ने तो कम से कम जलसा भी किया। लेकिन आखिर कब तक? कामरान भाई देखिए, मेरे पास तो आज हुस्से करने के लिए कुछ आज कोई टूल नहीं है। मेरे पास कोई एमपीए नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, कोई वजीर नहीं है। और हमारे साथ जो हुआ 2018 में, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन चलो भाई, जैसे तैसे हुक्मरानी आ गई। पीटीआई अभी इस वक्त जो है वो ऐसे बिहेव करती है
जैसे वो इलेक्शन कैंपेन चला रही है। ओपोजिशन वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे इनके पास कभी हुकूमत रही ही नहीं है, पहली दफा काउंसलर बनेंगे। हम इन दोनों को झंझोड़ना चाहते थे और हमने झंझोड़ा। देखें, मैं दूसरी पार्टीज की कानूनी अपने आप को उसमें एमक्यूएम ने अगर किया होगा तो एमक्यूएम आज भी हुकूमत में, एमक्यूएम को जलसा नहीं करना चाहिए। एमक्यूएम को तो भाई अभी मसले हल करने चाहिए। जमात इस्लामी पे मैं कभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा मसला ये है, हमने जो जलसा किया है, हमने हुकूमत को और अपोजिशन को इस सब कुछ की ये बात कही है कि आप एक हुकूमत बचाने में लगा हुआ है, एक हुकूमत गिराने में लगा हुआ है। लोगों को इससे कोई गरज नहीं है। खुदा के वास्ते लोगों के मसाइल के ऊपर तवज्जो दो। अगर नहीं दोगे तो ये सिर्फ जलसा एक ग्राउंड में आकर जमा होकर लोग नहीं रह जाएंगे, फिर हर गली गली एहतजाज हो रहा होगा फिर कराची में। और मैं आपको बता रहा हूं कामरान भाई, ये हो रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उन हुक्मरानों को जो उन्होंने एक कैमोफ्लेज किया और अपोजिशन की जमातों ने कि कराची से खड़े होकर एक भी बात नहीं की एज इफ कि कराची की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कल ये बताया कि नहीं, कराची का मसला है और आप है मसले की जड़। आप पीपल्स पार्टी मसले की जड़ है और आप अगर ये नहीं करेंगे तो लोग इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? डेफिनेटली अब अगला स्टेप जलसा नहीं होगा कामरान भाई। अगला स्टेप डेफिनेटली जो हुक्मरान है अब हम उनके आगे खड़े होंगे, लोग पुरअमन एहतजाज करें, या तो ये हमारी बात माने या भाई हुक्मरानी करें, हम मना नहीं कर रहे। एक लम्हे के लिए मैं आपसे सब टाइम चाहूंगा। देखिए, इस ऑपोजिशन की मूवमेंट से कामरान भाई पूरे पाकिस्तान में फर्ज करें तब्दीली आ जाती है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बदलकर पीएमएलएन की आ जाएगी, फर्ज करें। खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब जो है पीटीआई की जगह अपने दोस्तों के साथ मिलकर आ जाएंगे, वहां पर पीएमएलएन आ जाती है। फर्ज करें वफाक में, फर्ज करें, मैं एक अजम्पशन कह रहा हूं कि वफाक में नवाज शरीफ साहब की दोबारा हुकूमत आ जाती है, पीएमएलएन की आ जाती है। और भाई सिंध में इसी पीपल्स पार्टी से बदलकर तहरीक चलने के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, तो हमारी किस्मत में सिर्फ तबाही बर्बादी है। बस सिंध के लोगों की किस्मत में सिर्फ तबाही बर्बादी है। गजब खुदा का कि एक पार्टी 12 सालों से हुकूमत में है और आज वो ओपोजिशन कार्ड खेल रही है, आज वो रोना रो रही है। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद मुस्तफा कमाल हमारे साथ मौजूद थे।